Good morning, everyone. Good morning. So today we are going to talk about a topic that is about irrigation, right? Which is one of the topic which is included under the topic crop production management only. So in the last lecture we have studied about what? Nutrient management. In that we have studied about manures and fertilizers, right? So today we will see second type, that is of irrigation. Now what do you mean by the term irrigation? Supplying of the water to irrigate the fields, crop fields, right? So in which case this irrigation system is required? Natural system तो है हमारे पास, natural source of water, right? That is nothing but the rainfall, है ना? But what happens if there is scarcity of water, if there is no rainfall, or if there is less rainfall? So what will happen? Obviously the crops might not get the sufficient amount of water in order to grow, and वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका production नहीं होगा तो obviously we will have the shortage of the crops. So for that reason we require the water, availability of water. If there is no water, then what will happen? Your crops may get damaged, your crops may get destroyed. तो इस चीज़ की वजह से we require an artificial system of water supply so as to properly irrigate the fields at the time of shortage of the water, scarcity of the water. ठीक है, तो वही irrigation का sources we will discuss. Different types के methods we have already studied in your lower classes. Different types का आपको पता रहेगा irrigation के, right? Drip irrigation, then sprinkler type of irrigation. Traditional methods were there, as well as modern irrigation methods are also available. So today we are going to discuss about some of the sources of the irrigation, right? वो types हम देखेंगे, उसके different sources देखेंगे, उसके uses देखेंगे. Then next we will cover some another point also, that is regarding the cropping patterns. Okay, so first of all we will see about the irrigation. Is that clear? Okay. So irrigation का मतलब क्या रहेगा? It is a process of the application of water, right? As you said कि there is supply of water in during the scarcity of water, you can say when there is less rainfall or no rainfall. तो उस time पर जो source of water है, right? So obviously source of water is must, but natural source of water is not available. Then हमारे पास आर्टिफिशियल जो है वो सोर्स होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द इरिगेशन प्रोसेस. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल्ड अमाउंट. ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा वाटर का भी आपको सप्लाई नहीं कर देना है टू इरीगेट द फील्ड्स, अदरवाइज इट विल अगेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. ठीक है, सो उस वजह से हमको कंट्रोल्ड अमाउंट में क्या करना रहेगा? सप्लाई ऑफ वाटर इन द कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम to supply the water to the crops, right? तो ये इसका main definition हो जाएगा कि what do you mean by the term irrigation. Secondly, irrigation methods are adopted at various places, especially in areas of low rainfall, less rainfall, no rainfall, right? To ensure the maximum availability of water so that your plants could able to grow in a proper condition, proper manner, right? So that is why irrigation method is must. Now why do droughts occur? अभी drought की जब हम बात करते हैं, drought means what? सूखापन, राइट? कि सूखा पड़ जाता है जहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाता है ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. सो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन होगा कैसे? बिकॉज फॉर द प्लांटेशन, फॉर द क्रॉप कल्टिवेशन वी रिक्वायर व्हाट? वाटर. अब वाटर का ही वहाँ पे शॉर्टेज हो गया, स्कैरसिटी हो गई है, तो ऑब्वियसली ड्रॉट लाइक कंडीशन वुड अराइज. तो वो चीज़ें किस वजह से हो सकती है? when there is no rainfall, less rainfall, scarcity of water, इसी कंडीशन में ड्रॉट होगा आपका. ठीक है, सो देखो द स्कैरसिटी ऑफ वाटर और लो रेनफॉल ऑफन रिजल्ट्स इन दी ड्रॉट कंडीशंस. बहुत कम है वाटर की अवेलेबिलिटी, तो ऑब्वियसली देयर माइट बी द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट. If farmers do not use any of the irrigation method and they only rely on the natural source of water, that is rainfall, then what will happen? अब उस साल बारिश आई नहीं या बहुत कम आई तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स को लॉस होगा, because there would be scarcity of water. So in that condition drought poses a serious threat for the cultivation of crops. Okay, because वो cultivation के लिए problematic हो जाएगा due to the scarcity of water. The areas with light soils also tend to face drought like conditions as the soil cannot hold the water or retain the water, right? Soil की capacity होनी चाहिए
टू रिटेन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट हम उस सॉइल में अगर क्रॉप का कल्टीवेशन करवाते हैं तो वी वुड गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स विल बी हाई। ठीक है, सो इन विच कंडीशन इट इज पॉसिबल? इफ देर इज प्रॉपर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू इरिगेट द फील्ड्स, राइट, then only your crops will able to grow and able to give you good production. Is that clear? Okay. Now irrigation methods, there are different types of irrigation methods. हमने in the lower classes we have already studied about the traditional method of irrigation and modern method of irrigation, right? But यहाँ पर जो है we are dealing with different sources of water for the irrigation. तो फर्स्ट इज अबाउट डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अभी वेल्स की जब हम बात करते हैं दैट इज नथिंग बट कुआं, है ना, वेल्स, राइट। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। डग वेल्स जो बेसिकली हमको विलेज एरियाज में, राइट, मिलता है, जो लाइक दिस वेल्स, है ना, तो दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ डग वेल्स। बट बेसिकली वहाँ पे हम पंप्स का भी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वॉट, in order to take the water from that particular wells. Okay, so that is the dug wells and tube wells. उसमें भी हम जो है अभी देखेंगे हम आगे one by one what this sources means. Okay, so in case of tube wells also motor pump is there for the supply of water from the underground water. Okay, canals के थ्रू करवा सकते हैं। river lift system is there. Okay, canals, different tributaries canals are there for the irrigation. Okay, river lift system wherever, obviously river lift बोला है तो river as a source of water वहाँ पे available होना चाहिए। वहीं से हम एक ऐसा system जो है ready करेंगे that is river lift system, so that we could supply the water to irrigate the fields. Tanks, storage tanks are must. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी रेनफॉल जब होता है तो ऑब्वियसली इट शुड नॉट कैरिड अवे लाइक दिस ओनली. ओके, इट शुड नॉट फ्लो and it should not get wasted. So instead of wasting those rain water, we need to store it by the method of rain water harvesting. Then also we have water check dams and all systems, that is nothing but the watershed management. तो one by one ये सबके बारे में हम देखते हैं. First is wells which are of two types. ठीक है, फर्स्ट इज योर ट्यूब वेल. यहाँ पे आपको ये सेकेंड वाला दिख रहा है. दिस इज द मेथड ऑफ ट्यूब वेल जिसमें द वाटर इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पंप. ओके, ट्यूब और पंप, सो इन ऑर्डर टू सप्लाई द वाटर टू इरिगेट द फील्ड्स. देन जो है आपका ये डग वेल्स विच आर द वेल्स डग इन द ग्राउंड, राइट. बट यहाँ पे भी आप देखोगे, सो दिस मोटर के पंप के थ्रू जो है दिस पर्टिकुलर वाटर इज कैरिड, व्हाट यू कैन से, सप्लाइड टू द डिफरेंट फील्ड्स. ओके, दीज आर जस्ट दी सोर्सेज. उसके बारे में आपको बताया है कि इरिगेशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है इन ऑर्डर टू इरिगेट द फील्ड्स. ओके, कैनाल्स के थ्रू करवा सकते हैं हम. सो दिस इज द कैनाल सिस्टम जिसमें आपका विच इज़ a network created to move the water from one source of water such as a stream or a reservoir. Okay, तो एक particular source रहेगा, but you are making different branches of this particular canals, right, so as to supply the water to each and every part of the fields. Okay, crop fields. So main canal is divided into branches. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक main source रहेगा canals का और बाकी this is divided into many such branches, right, so as to irrigate the fields. So in order to distribute the water everywhere uniformly. Fine. So for that reason we can use what, canal system. अब what about where the canal system is not possible? ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ other system of irrigation होगा, because you know everywhere we can't use only one system. Depends on the region, depends on the locality. Okay, what is available. There we can use one such system of the irrigation. ठीक है, not all. तो ये आपके पास options रहते हैं farmers के पास कि whether they can choose dug well, tube wells, canal system, river lift system, watershed management, rain water harvesting, etc. Okay. River lift system. So नाम से समझ में आ रहा है river तो रहेगा ही. River lift system is used to draw water from the rivers, right? डायरेक्टली फॉर द इरीगेशन पर्पसेस. तो रिवर का सोर्स वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए. वहाँ से हम जो है क्या बोल सकते हैं, ये दिस रिवर लिफ्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इरीगेट द फील्ड्स. दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज सक्सेसफुल इन एरियाज वेयर द कैनाल सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल. ओके, जहाँ पे कैनाल सिस्टम को हम यूज़ नहीं कर सकते तो वहाँ पे जहाँ पे रिवर का सोर्स रहेगा वहाँ से हम जो है रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं फील्ड्स को. ओके, वाटर का सप्लाई करवा सकते हैं टू डिफरेंट क्रॉप्स. ओके, इन द फील्ड्स. टैंक्स, तो स्टोरेज टैंक्स आर अवेलेबल. फार्मर्स कैन यूज़ द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर और टैंक्स
in order to store the water as well as supply the water in very small fields, है ना, क्योंकि अब स्टोर करके रख रहे हैं तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर विल बी अवेलेबल, राइट. सो लिमिटेड रीजन में ही हम सप्लाई कर सकते हैं. सो इन वेरी स्मॉल फील्ड्स इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड इफ देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, राइट, सो देयर वी कैन यूज दिस मेथड स्टोरेज टैंक, जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे एंड एट द टाइम ऑफ नीड वी कैन सप्लाई दिस वाटर टू इरीगेट द फील्ड्स. ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स है which the farmer can use in order to irrigate the fields. Okay, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लेटिंग द रेन वाटर फ्लो, अभी मैंने जस्ट बोला राइट कि रेनफॉल जब होता है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है that gets wasted. Okay, तो वो चीज़ ना हो, so that is why we can store it, right, by a proper management. That is nothing but rain water harvesting. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है catchment area is available, right, in order then one storage tank is there in order to collect the water in this storage tank. ठीक है, वो वाटर कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो आप? फ्रॉम दी रेन वाटर ओनली. ओके, जो रेन वाटर है उसी को आप जो है रिजर्वायर टैंक में, स्टोरेज टैंक में कलेक्ट करके रख रहे हो बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज नथिंग बट योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द, अगेन योर मेन पर्पज इज व्हाट, टू इरीगेट द फील्ड्स. तो इरीगेशन के लिए हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इकट्ठा किया गया जो रेन वाटर हमारे पास वाटर रहेगा, दैट इज स्टोर्ड एंड दैट वी कैन यूज इट फॉर इरीगेशन पर्पज. ओके, वाटरशेड मैनेजमेंट, स्मॉल चेक डैम्स, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस चेक डैम्स आर बिल्ट नियर द, यू कैन से रिवर्स और द स्ट्रीम्स. जो वाटर सोर्स शुड बी अवेलेबल, क्योंकि वहीं पे नेचुरल सोर्स तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रहेगा ही, तो वहीं से हम जो एक प्रॉपर सिस्टम से वाटर का सप्लाई करवाते हैं टू द फील्ड्स, बिकॉज डायरेक्ट सोर्स से तो आपके फील्ड तक तो पहुँचेगा नहीं हो, उसको कुछ चाहिए ना, राइट. सो ईदर थ्रू बाई मीन्स ऑफ कैनाल्स, बाई मीन्स ऑफ रिवरलेस सिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा मेथड वी कैन यूज द वाटर फॉर द इरीगेशन पर्पसेस. ठीक है. So small dams are built on the rivers and streams in order to increase the groundwater levels of that particular area. Okay, this check dams prevent the water from flowing away. जैसा हमने देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी if we do not store the rain water, then what will happen? It can easily get wasted, flow away. ठीक है, तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं. तो in this also watershed management also check dams are built, ठीक है, near the rivers or the streams in order to what? Store the water and use it at the time of need, that is during the irrigation purposes. Okay, for the irrigation purpose, and also it can also cause soil erosion. तो वो चीज़ें भी वहाँ पर problem solve हो सकता है if we use this watershed management. Okay, so these are some of the sources of irrigation. Okay, कि कौन से method को आप use कर सकते हो for the irrigation purpose. Next जो है आपका that is cropping patterns. It is also one of the you can say type which is involved in crop production management, because हम पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं about the improvement in food resources. Okay, so in that हमने crop variety improvement देख लिया था, crop production management हमारा चल रहा है. तो in that we have covered first point, that is nutrient management में manures, regarding the manures and the fertilizers, types of manures also we have studied. Then today we have learned about what? Irrigation. What is irrigation? Why irrigation is necessary? What are the different methods of irrigation? Fine. Now third is about cropping patterns, है ना. अब आप जो suitable एक method use कर सकते हो for the as a cropping pattern in order to increase the production of your crop. So they are generally of 3 types, जिसमें हम mixed cropping पढ़ते हैं, intercropping पढ़ते हैं and crop rotation पढ़ते हैं. Okay, so one by one all these 3 methods we will see in detail. First is your mixed cropping. So it is a cropping pattern in which 2 or more crops, है ना, mix नाम से समझ में आ रहा है, crops are mixed, है ना, on the random basis. एक कोई definite एक such pattern नहीं है, ठीक है, कि एक रो में आपने एक जो है प्लांट को कल्टिवेट करवाया है, दूसरे रो में आपने दूसरे प्लांट को कल्टिवेट कराया है. There is no such method, but इस मेथड में आप क्या करते हो? mixed cropping, ठीक है, 2 or more than 2 crops are selected and they are grown on a same piece of land. Okay, such a type of method is known as, such a cropping method pattern is known as mixed cropping. ठीक है, so it is a cropping pattern in which 2 or more crops are grown together in the same field. यहाँ पे आपको दिख रहा है mixed cropping. On the random basis these crops are cultivated. Okay, main aim of this cropping method is to ensure some yield even if one of the crops fails to grow properly. अब आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग करवाया है, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट, डिफरेंट क्रॉप्स के जो है हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. बट इसमें आपको फ़ायदा क्या रहेगा
कि अगर एक किसी क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो भी जाता है तो वी आर हैविंग अनदर क्रॉप, राइट, विच इज़ एक्टिंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। तो आपका कोई मेहनत एज सच वेस्ट नहीं जाएगा उस फार्मर का कि जिन्होंने भी ये क्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ करा है। ही विल गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्शन इज destroyed, then also we will get the production of another crop. Same fertilizers can be used for all the crops. Okay, same fertilizers. Otherwise क्या हो सकता है, अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट, बहुत सारे क्रॉप्स का हम दूसरे पैटर्न में देखेंगे, तो इसमें हम एक ही टाइप के क्रॉप्स को, ठीक है, लाइक जो है ग्रो करवा रहे हैं वहाँ पर, जिसमें आपको फर्टिलाइज़र जो है वो इक्वल ही वर्क करेगा फॉर ईच एंड एवरी क्रॉप्स विच वी आर ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर लैंड। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम एक ही पर्टिकुलर फील्ड में, लाइक वीट का भी आपको उसमें क्रॉप मिलेगा, ग्राम्स का भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट हम कॉम्बिनेशंस में क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, ओके, बाय यूजिंग द सेम फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, जो कि इक्वली आपके क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एंड इफ वन ऑफ द क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रक्टेड बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग, है ना, कोई बायोटिक एजेंट की वजह से, अबायोटिक एजेंट की वजह से आपका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए इफ़ वी आर यूजिंग दिस मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड, तो आपका क्या रहेगा, एक क्रॉप अगर डिस्ट्रक्ट हो भी गया तो उसके बदले में हमारे पास दूसरा क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन हमको मिल जाएगा, सिंस वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, मिक्स्ड फार्मिंग आप फॉलो कर रहे हो, तो वी आर हैविंग सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस क्रॉपिंग pattern. Second is about intercropping. So it is a cropping method in which two or more crops are grown together in a definite manner, okay, in a definite in the field but in a specific pattern, in a definite pattern. जैसे एक रोज में आप कर रहे हो, alternate रोज में आप इसको grow करवा सकते हो, ठीक है, in case of intercropping. So the seeds of these crops are not combined before the plantation. जैसे हम mixed farming में हमने देखा था randomly combination हो रहा था, but in this case एक particular pattern से हम follow कर रहे हैं. If एक रो में एक crop को किया है तो आप next रो में दूसरे crop का करोगे, random basis पे यहाँ पर नहीं हो रहा है. Okay, that is the method of intercropping. So both the crops uses different kinds of fertilizer. In case of mixed farming हमने क्या बोला था, सिमिलर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, बट इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्या होगा, हम एक डेफिनाइट रो में उसको करवा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रो में एक ही टाइप का फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, नेक्स्ट वाले क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट, तो दूसरे टाइप का फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड टू ग्रो दी सेकेंड क्रॉप. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग. ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग मेथड इज टू एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. अभी ये तो आपके हर एक क्रॉपिंग पैटर्न का एम होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, सो मेन एम ऑफ दिस इंटरक्रॉपिंग ऑल्सो is to ensure कि we are getting maximum production of the crops. Okay. Secondly, since the crops have different nutritional requirement, they would use maximum nutrients which is available in the soil, because since we are using different fertilizer, obvious सी बात है, बहुत ज़्यादा chemical fertilizer का use नहीं करना है हमको. Instead we should use manures. Okay. बट कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं विच रिक्वायर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी अवेबिलिटी तो उसको सॉइल से ही होगी, और सॉइल में उसकी अवेबिलिटी नेचुरल तरीके से भी होती है, एंड उसको एनरिच करने के लिए वी आर यूजिंग मैन्योर्स ऑल्सो एज वेल एज fertilizers also. So depends on the requirement of a particular crop or the plant, different types of nutrients are supplied to the soil which are uptaken by the crops. Is that clear? Okay. Then disease and pest would also not easily spread to all the crops, because इनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है, तो किसी क्रॉप को एक चीज़ से प्रोटेक्शन है, दूसरे क्रॉप को दूसरे चीज़ से प्रोटेक्शन है, राइट, एंड दे आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, तो इसमें इनका डिस्ट्रक्शन का जो चांसेस है दैट वुड बी वेरी लेस. ओके, रिस्क इसमें कम रहेगा और प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा रहेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन प्लस मेज, फिंगर मिलेट्स, काउपी, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कॉम्बिनेशन में हम वन ऑल्टरनेट रोज में हम इसको कल्टिवेट करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी मैक्सिमम प्रोडक्शन. ओके, लास्ट इज योर क्रॉप रोटेशन, जिसमें हम रोटेट करवाते हैं, राइट. जैसे आपको क्लास में भी जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपका रोटेशन चलता है, तो इन द सिमिलर मैनर क्रॉप्स को भी हम क्या करवाते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में रोटेट करवाते हैं. ठीक है, सो एज टू एंश्योर कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हाट यू कैन से मिनरल्स, राइट, और न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी क्रॉप. अदरवाइज क्या होगा, आप सेम पीस ऑफ लैंड में इफ यू आर ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप अगेन एंड अगेन, है ना, आप एक बार सो कर रहे हो, फिर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, देन अगेन आप सोइंग कर रहे हो सेम
सीड, सेम क्रॉप के सीड का, तो व्हाट विल हैपन, न्यूट्रिशन जो होगा उस पर्टिकुलर जो मिनरल्स होगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, इट विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, है ना, वो खत्म होने लग जाएगा. सो टू अवॉइड दैट कंडीशन वी शुड यूज द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन, जिसमें वी आर इंश्योरिंग कि वी आर चेंजिंग द क्रॉप्स वन बाय वन, राइट, सो दैट न्यूट्रिएंट डिप्लीशन कुड बी अवॉइडेड. ओके, न्यूट्रिएंट का वहाँ से डिप्लीशन होना नहीं चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन अ प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, एवरी टाइम. सो दैट इज वाई क्रॉप रोटेशन मेथड कुड बी followed. It is also having some advantages. So in this cropping system, different types of crops are chosen and irrigated on the same piece of land sequentially, right? जैसे मैंने बोला अभी फर्स्ट आपने एक क्रॉप करवाया है तो उसी जगह पे आप सेकेंड टाइम नेक्स्ट क्रॉप का कल्टीवेशन करवाओगे, राइट? सो यू आर रोटेटिंग द क्रॉप्स सो एज टू इंश्योर कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट की अवेबिलिटी हर टाइम उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर रहना चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके. And the rotation of the crops depends upon the soil, climatic condition. ये कुछ factors हो सकते हैं, right? Depends on the soil, climatic conditions, water retention capacity of the soil and all. So accordingly we are choosing the crops and we are choosing this crop rotation method so as to ensure the proper distribution of the minerals and uptake should be done in a proper efficient manner by the crops which we are sowing in that particular piece of land. Okay? How crop rotation is useful means what are the advantages, right? इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? So देखो, if farmers grow the same crop on the land for long term basis, so what will happen? It will start depleting the nutrients, right? जो भी ज़रूरी nutrients है, जैसे for example नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले जो नाइट्रोजन यूटिलाइजिंग वाले कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, क्रॉप्स हो सकते हैं, अगर वही हम बार बार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉइल. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग व्हाट, क्रॉप रोटेशन मेथड. And also to increase the soil fertility should not get reduced, right? तो उसको भी prevent करने के लिए we are using crop rotation method. But when crops with different nutrition requirements are grown, जैसा अभी हमने discuss किया, तो what will happen? We could able to maintain the fertility of the soil, right? Planting different crops on rotation can lead to better yield. ये तो हमारा main ही advantage होता है, right? If we are using this crop rotation method, we could get the maximum yield. ये तीनों का ही मेन एम रहता है आपका, चाहे आप इंटरक्रॉपिंग यूज़ करो, मिक्स्ड फार्मिंग यूज़ करो और क्रॉप रोटेशन यूज़ करो. ओके, देन क्रॉप रोटेशन अलाउज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. येस, ठीक है, बिकॉज इसमें नेचुरली जो है न्यूट्रिएंट का supply बना रहेगा inside the soil, right? So that is why there would be reduction in the use of fertilizers and pesticides also, which we are using in order to get the maximum production. But since these are based on chemicals, so obviously हमको natural वाले manures are better, nutrients are better as compared to the chemical ones. ठीक है, तो उसको हम avoid कर सकते हैं if we are using crop rotation method. Is that clear? So with this we have completed cropping pattern also and irrigation method also, which is included under your topic crop production management. Okay, thank you.